Today, Andhra Pradesh Bharatiya Janata Party is protesting throughout the state, statewide protest against the ruling YSRCP government, Jagan Mohan Reddy Garu's anti-farmer activity, anti-farmer decisions and anti-farmer behavior. The farmers of Andhra Pradesh are suffering a lot because of the wrong policies of ruling Jagan Mohan Reddy government. Today, throughout Andhra Pradesh, thousands and thousands of Karyakartas of Bharatiya Janata Party along with their leaders are protesting against the injustice happening with farmers. I request our Rajya Sabha member, former spokesperson of Bharatiya Janata Party, leader of Andhra Pradesh, GVL Narsimha Rao Garu, to speak on this topic. Thank you, सुनील देवदत्त जी. धन्यवाद. जैसा सुनील जी ने अभी कहा, entire team of Bharatiya Janata Party family all over Andhra Pradesh, all the cadres of the BJP in Andhra Pradesh are today protesting against the injustice meted out to the farmers in Andhra Pradesh by the YCP state government led by Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy. The farmers who have toiled very hard, the Annadatas who have produced more than 62 lakh tons of paddy in more than 8.8 lakh hectares in the state of Andhra Pradesh are today unhappy lot because the state government is not procuring the mandated or the targeted quantity of paddy from the farmers of Andhra Pradesh. Against this 62 lakh metric tons production, the state government was targeting to procure 45 lakh tons at the mandated minimum support price. But unfortunately, so far the state government has procured just about half of the target that was set for procurement. The farmers of Andhra Pradesh have had high expectations. They have at least expected minimum justice from the YCP government, but they today feel betrayed by the complete inaction of the state government and a complete turning a blind eye towards the plight of the farmers of Andhra Pradesh. The MSP for the MSP that has been fixed for the A grade variety is 1888 rupees, while the farmers are today compelled to sell to middlemen and to rice millers at 1200 rupees a quintal, and a maximum of 13 to 1400 rupees per quintal, which means the farmers of Andhra Pradesh, the paddy farmers of Andhra Pradesh are being deprived of at least 25 to 30% of the MSP which they ought to have received as per the central government policy. So we demand that Andhra Pradesh government must stop turning a blind eye to the farmers of Andhra Pradesh. Government of Andhra Pradesh must stop any kind of indirect or tacit alliance with the rice millers and those who are cheating the farmers of Andhra Pradesh. It must stop acting as if it is not aware of the injustice to the farmers from the middlemen, and it must immediately procure the targeted stock from the farmers, because the Kharif crop is about to be sown all over the state of Andhra Pradesh, and it is unfortunate if farmers don't get their money for the previous crop well in time to incur expenses. Secondly, it is not just non-procurement. Payments have been delayed deliberately or otherwise.
I think the state government had promised to pay the farmers for whom procurement has been done within a specified period. But farmers across the state are complaining that they have not received money in their accounts. The state government is delaying payments to the farmers, thus forcing more farmers to make a distress sale to the middlemen and to rice millers. And this is certainly a violation of the promises made by the YCP government to the people of Andhra Pradesh, to the farmers of Andhra Pradesh. So they must immediately procure the balance stock, and they must also pay farmers without any delay. We demand that all payments that are pending must be transferred into farmers' accounts in schemes of the government, of the Ministry of Agriculture, particularly schemes which are close to the Honorable Prime Minister Narendra Modi's his dreams of making farmers get at least twice the amount of income than their expenditure. Doubling the farmers' income is the goal of the Honorable Prime Minister, but the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Jagan Mohan Reddy, is not interested in these dreams coming true. Per drop more crop, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, the micro irrigation scheme, under which lakhs of farmers have benefited in Andhra Pradesh in the previous years, they are now being deprived of this benefit because the state government does not want to spend any money. It is a centrally sponsored scheme where center contributes significant amount of money as subsidy for the farmers, but the state has stopped the funding, state funding, and state has stopped giving benefit to the farmers for drip irrigation and other micro irrigation schemes. We demand, in a question in Parliament which I have asked, towards the end of March, the Ministry of Agriculture has informed me that in the previous 2 years, Andhra Pradesh had received almost 500 crore rupees towards the Prime Minister's Krishi Sinchai Yojana, the micro irrigation scheme. But in this year, in year 2021, Andhra Pradesh had got only 100 crores under this scheme because the state government is not implementing the scheme properly. So we demand that all central sponsored schemes, central government schemes must be implemented with full force, and farmers must not be deprived of their benefit, and the AP government must get rid of its anti-farmer attitude and must start focusing on the welfare of the farmers. Until the state government fulfills these demands, the BJP will continue to raise its voice in one form or the other. Thank you. इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देखने वाले सारे देशवासियों को मैं आंध्र प्रदेश में किस उसकी जानकारी हिंदी में देना चाहूँगा। अभी इंग्लिश में जीवीएल नरसिंहा राव जी ने बताया है और इसके बाद में सारे प्रेस के सामने वो तेलुगु में भी इसको बताने वाले हैं। लेकिन जानकारी के लिए कि जब केंद्र सरकार ने एमएसपी फाइनल किया है, जो पैडी का धान के लिए जो चावल का जो रेट फाइनल किया है, ए ग्रेड धान के लिए 1888 रुपया पर क्विंटल और जो सामान्य क्वालिटी का धान है उसके लिए केवल 20 रुपया कम 1868 रुपया पर क्विंटल। ये तय हुआ था कि आंध्र प्रदेश में जो कुल 62 लाख टन चावल उगता है, पैडी उगता है, इसमें से 40 लाख टन राज्य सरकार खरीदेगी किसानों से, जिसका पैसा केंद्र सरकार देगी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ये खरीफ शुरू होने वाला है और ये चावल तैयार होने के बाद में भी, धान तैयार होने के बाद में भी आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी सरकार ने केवल 22 लाख टन अब तक खरीदी की है। मतलब जो तय किया था उससे आधे चावल का खरीदी राज्य सरकार ने की है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि उसका पैसा अभी तक किसानों को मिला नहीं है। खरीदी किया है लेकिन उसका पैसा नहीं मिला है और 6-6, 8-8 महीने से पैसा न मिलने के कारण किसान बहुत परेशान है। और अभी जो खरीफ आएगा उसकी उपजाई के लिए, उसकी
शुरुआत में जो खर्चा आता है उसमें किसानों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आंध्र के किसानों के पास अभी पैसा नहीं है, इसलिए आंध्र के किसानों को ये लग रहा है कि उनके साथ बैकस्टैबिंग हुआ है। उसी के साथ साथ ये सिर्फ धान के बारे में नहीं है। आंध्र प्रदेश ये लाल और हरे मिर्चे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुंटूर की मिर्ची जो है वो चिली बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी प्रसिद्ध है। हल्दी के किसान और जो मिर्चा उगाते हैं वो किसान, वो सब इन्हीं चीज़ों के कारण बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सोमवीर राजू जी के नेतृत्व में आज सारे प्रदेश में कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हजारों कार्यकर्ता अपने घर के बाहर या अपने आस पड़ोस के किसानों के साथ खेतों में जाकर इसके खिलाफ निदर्शन कर रहे हैं। अपना गुस्सा दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। बहरे न सुनने वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी के कानों तक ये किसानों की आवाज़ पहुँचे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रैतू भरोसा, तेलुगु में रैतू मतलब किसान होता है और बोतू मतलब गाली होता है। ये जो आंध्र का कृषि मंत्री है, वो कृषि मंत्री उसके गाली देने वाले वक्तव्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोलना, अन्य भाजपा के या विपक्ष के लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बोलना, देवी देवताओं के बारे में भी अनाप शनाप बोलना, इसके लिए मेरी आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है कि रैतू की चिंता करे, बोतू की चिंता ना करे। रैतू दिमाग में रखे, बोतू मतलब गाली दिमाग में नहीं रखे और वास्तविक में किसानों की चिंता करे। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जहां पानी कम होता है वहां पर अच्छी फसल उगाने के लिए ड्रिप इरिगेशन का जो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था, 1 ड्रॉप 1 क्रॉप नाम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें यह तय हुआ था कि इसके लिए जो खर्चा आता है सब्सिडी के तौर पर 40% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा और 20% का वहन किसानों को करना पड़ेगा। गए 2 वर्ष में आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए ले लिए थे, लेकिन इस एक साल बीते 1 वर्ष में आंध्र प्रदेश सरकार ने केवल 100 करोड़ रुपया इसलिए लिया है क्योंकि इस राज्य सरकार को जो 40% देना है वो पैसा इनके पास नहीं है और इसलिए उन्होंने किसानों के साथ अन्याय करते हुए केंद्र सरकार के 400 करोड़ रुपया लिए ही नहीं और आंध्र प्रदेश को नुकसान में डाल दिया। ये पैसा कहाँ गया? ये फ्रीबीज में बांटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार चर्च के पादरियों को हर महीना 5,000 रुपया देने के लिए इनके पास पैसा है। ऑटो रिक्शा वालों को फ्री में बांटने के लिए पैसा इनके पास है। वकीलों को फ्री में बांटने के लिए पैसा इनके पास है। विलेज वॉलेंटियर्स नाम से 2.5 लाख से अधिक जो किसी भी संविधान में जिसका कोई समर्थन नहीं हो सकता, ऐसे वाईसीपी के गुंडे कैडर को देने के लिए 2.5 लाख लोगों को हर महीना 5,000 रुपया सैलरी, पार्टी के लोगों को सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा है। जिनको हाथ में लेकर सारे चुनावों में उन्होंने गुंडागर्दी की, उनको स्पॉन्सर करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन किसानों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और किसान अगर फसल नहीं उगा सकेगा या अब जब उन्होंने एमएसपी नहीं दिया, जो 1888 रुपया मिलना चाहिए था, वो 1200 रुपया में उसको पैसा न मिलने के कारण, राज्य सरकार न खरीदने के कारण किसानों को ये राइस मिलर्स को या प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना पड़ रहा है। मेरा यह आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी जी की भ्रष्ट सरकार इन राइस मिल माफियाओं के साथ, ये प्राइवेट जो प्लेयर्स है इन माफियाओं के साथ मिली हुई है। वाईसीपी के गुंडे, वाईसीपी के नेता, वाईसीपी के मिनिस्टर्स, वाईसीपी के सांसद, वाईसीपी के विधायक, वाईसीपी के लोकल लीडर्स, ये किसानों का ये कम दाम में खरीदा हुआ जो पैसा है, उसके बाद में जो
क्लेम करेंगे, एमएसपी क्लेम करेंगे, ये माफिया क्लेम करेंगे, उसमें से ये हफ्ता वसूली करने राज है। ईसाइयों का धर्मांतरण चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। मंदिरों के ऊपर हुए हमलों के जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको आज तक पकड़ा नहीं गया है और इसलिए आंध्र प्रदेश में सनातन हिंदू धर्म खतरे में है। आंध्र प्रदेश की जनता का जो एक जीवन होना चाहिए, जिसके साथ लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, वो खतरे में है। किसान खतरे में है, युवाओं को जॉब नहीं है। इस प्रकार से एक भयंकर अवस्था में आंध्र प्रदेश जा रहा है। लोगों को फ्री बांटने के चक्कर में उधार लेने का काम पहले चंद्रबाबू नायडू ने किया और अभी जगन मोहन रेड्डी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उधारी 2 साल में वो कर चुके हैं, जब रीपेइंग की कैपेसिटी नहीं है। और इस प्रकार से ये पैसा कौन चुकाएगा? आंध्र प्रदेश के टैक्स पेयर्स का पैसा विकास के बजाय कंपनियों को बुलाकर, इंडस्ट्री बढ़ाकर, राज्य में लोगों को रोजगार मिलने के जगह पर ये मुफ्त में गरीबों को बांटने में, पादरियों को मुफ्त में बांटने में, वाईएसआरसीपी के कैडर्स को मुफ्त में बांटने में खर्चा हो रहा है। इसलिए आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए सैलरीज भी जगन मोहन रेड्डी जी के पास नहीं है। इन सारे चीजों के साथ साथ कोविड का जो फेल्यूर आंध्र प्रदेश में हुआ, उसके लिए पिछले रविवार को आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार का प्रोटेस्ट किया था और आज किसानों के अधिकार के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरा सवाल सारे भारतवर्ष में किसान आंदोलन के साथ खड़े रहे सभी सफेदपोश लोगों को है कि आंध्र में होने वाले इस अत्याचार के खिलाफ कोई किसान नेता क्यों नहीं बोल रहा है? क्या आंध्र प्रदेश का किसान नहीं है? ये बात सबको समझनी चाहिए और अपने अपने सोशल मीडिया और मीडिया में उठानी चाहिए। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी जी की जुल्मी सरकार का आंध्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों में निर्भत्सना करती है, निंदा करती है। हम कंडेम करते हैं और हम जगन मोहन रेड्डी जी के खिलाफ आज इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं।